when I talk about education, तो मेरी definition of education थोड़ी different है, ठीक है? मेरी जो definition है education की वो lie करती है on the practical ground. एजुकेशन अगर हमें ये ना सिखाए कि व्हाट टू थिंक, बट ऐसा सिखाए कि हाउ टू थिंक, तो कैसा रहेगा? And before going into जो आज की education है, I think that the real meaning of education, why are we taking education, वो जानना बहुत जरूरी है. ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आ गया. वी डू नॉट नो व्हाट इज द फिलोसॉफी बिहाइंड एजुकेशन. जो अपने माइंड को सबसे ज्यादा समझता है वो अपने अपने आजू बाजू के वर्ल्ड को सबसे ज्यादा समझेगा, और जो वर्ल्ड को समझेगा वो क्या नहीं समझेगा. एजुकेशन जैसे आपने बोला वो बहुत ही सही बोला अबाउट प्रैक्टिकलिटी एंड जैसे कि जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट जो आपने बताए हैं, तो दोज आर डेफिनेटली एप्लीकेबल. Hello everyone, welcome to Complexity Simplified. The video you have just seen was just a 1-minute insight clip of our whole discussion. Now just estimate how the whole discussion, the whole video would be. Presenting you all the very first video of our series Views on Education with Mudit Pathak. Yes, it was very hard to talk about something via a Zoom meeting. I tried my best. Even harder it was to talk something like education in a Zoom call. Thus, ignoring all my possible mistakes that I have did, watch the video till the end, and I want your remarks on what do you think about our perception to see education in this whole video. I welcome you to the very first video of our channel, that is a discussion talk on education. I not only welcome you but also appreciate your kindness to contribute to this research, to this humble journey of me to find the true essence of education. To all the viewers out there, Mudit Bhai is truly a youth influencer and a young change maker, I can say. And I have a long list of his achievements. That is, Mudit Pathak is India's first, youngest, and only youth to be awarded with Karmveer Chakra Global Young Leader Fellowship and Rex Karmveer Chakra Awards directly awarded by United Nations. He was the winner of Literoma Young Achievers Award 2020 and was also nominated for Padma Shri this year. Apart from all these achievements, Mudit currently runs 4 to 5 organizations also to help youth to build their own careers, to actually make them fly with their own wings independently. So that is a big deal of work. And after researching about all this data, I can truly say about you is that you have quite done a really strong progress out there. तो जैसे छोटी छोटी चिंगारियां बड़े बड़े जंगलों को भी जला देती है, और जैसे छोटे छोटे कदम बड़े बड़े पहाड़ों को भी पार करवा सकते हैं, वैसे मैंने आपके बारे में एक इंटरव्यू में एक देखा था कि आपने ऐसा कहा था कि आपने एक एनसीईआरटी की बुक में एक वर्ड आपने पढ़ा था, दैट इज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और वहां से ही ये चिंगारी बढ़ी और आप यहाँ तक पहुंचे. तो मुझे ये जानना था सबसे पहले, मेरा आपका ये क्वेश्चन है कि ये आपने अपना जो आइडियल था, ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट था, उसमें आपने ऐसी एनर्जी आ गई ये स्टेटमेंट पढ़ के कि आप यहाँ तक पहुंच गए. यहाँ पर आप जब हो तो ये बीच में जो जर्नी थी वो आपने एक कैसे ट्रांसफॉर्म की, मैनिफेस्ट की? ओके, सो सी बेसिकली जब मैं क्लास 5th में था तब तक मेरा एम था टू गो फॉर मिलिट्री, लाइक आर्मी के लिए, बट बिकॉज ऑफ माई आई साइट एंड बिकॉज ऑफ माई फिजिक आई कुडंट क्वालिफाई दैट एनडीए और व्हाट वी से घोड़ा खाल का एंट्रेंस, राइट, बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स. तो वो आइडिया मेरा ड्रॉप हो गया था, बट वो आइडिया ड्रॉप हुआ था, वो जज्बा ड्रॉप नहीं हुआ था टू सर्व द कंट्री, राइट. द आइडिया इज टू सर्व द कंट्री, नॉट टू गो इनटू एनडीए और नॉट टू गो इनटू द घोड़ा खाल, ठीक है, बिकॉज एक आर्मी ही जरिया नहीं है कंट्री को सर्व करने का. मल्टीपल अमाउंट ऑफ वेज हैं जिसको वी कैन सर्व द कंट्री, राइट. सो वन वे वाज गॉन बट द जज्बा वाज ऑलवेज देयर. सो नाउ व्हेन आई
साल दर साल से 7, 8, 9, 10 जिसमें तो था ही, राइट. देन आई वाज also a boy who used to explore very much. I am a boy who used to explore very much, explore different fields to gain knowledge, to gain expertise, to gain exposure, and uh, to increase my औकात. बेसिकली एक औकात वर्ड है हिंदी का, Value. वो इंक्रीज करनी है मुझे, या Yes. अपनी औकात बढ़ानी है, राइट. किसी और को दिखाने के लिए नहीं, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, बट खुद को दिखाने के लिए कि यस आई कैन डू. बिकॉज जब दूसरा इंसान आपके ऊपर एक उंगली उठाता है तो 4 उंगलियां उसकी तरफ भी उठती है, राइट. तो वो एक उंगली जो आप पे आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक उंगली भी ना आए. देयर शुड बी नो वन इन दिस वर्ल्ड हु कुड pinpoint anyone, because it is not the right idea of pinpointing anyone, right. कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं हो, because comparing two individuals is never a good deal, because you or me, we are never same and we couldn't be same at any point of time, because मैं आपका वो God पढ़ा था is- अनडिफिटेबल आर्टिस्टिक योगी, आपने इसके पीछे का रीजन, yes, द रीजन Yeah. व्हाई यू आर अनडिफिटेबल. आपने hmm, ये आपकी जर्नी में बहुत सारे यूथ है उनके साथ इंटरेक्शन भी किया होगा, उनके साथ वर्क किया होगा, और आपने जैसे कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस आप उसमें हैंडल करते हो, तो आप यूथ को ऐसे उनमें क्या फाइंड करते हो और उनमें क्या देखते हो आप अभी के इंडियन यूथ में, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने कहा कि आपका जो ड्रीम था एज अ सोल्जर आप इंडिया को सर्व करोगे, बट आपने अगर आपके जो फिजिकल लिमिटेशंस है वो नेचुरल होती है, तो ये लिमिटेशन से आप उस तरह सर्व नहीं कर पाए, बट अभी नॉलेज गेन करके और ये कंट्री में क्या चाहिए वो आपने देख के आपका जो प्रोफेशन चूज किया है और यूथ को हेल्प करने का आपने सोचा है, तो वैसे आप यूथ में देखते क्या हो, अभी क्या फाइंड करते हो आप आपके जो इंटरेक्शंस और एक्सपीरियंस है. जी जी श्योर. सो सी आई वाज ऑन द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन. तो हम लोग ये देखते हैं कि गॉड इज आल्सो नॉट परफेक्ट. व्हाई सो? बिकॉज वी हैव 4 फिंगर्स एंड 1 थंब, जो कि इक्वल नहीं है. गॉड ने दिए हैं, इक्वल नहीं है. तो व्हेन दीज आर नॉट इक्वल, इट clearly states that God is not perfect. And when God is not perfect, how can we as an individual claim to be perfect, right? So ये तो बात आ जाती है that no one is perfect, no one can be like another individual, और comparison तो होना ही नहीं चाहिए. The very biggest drawback of our country is comparing two individuals. तो ये चीज बंद होनी चाहिए. Either on the parent side, the parents compare two kids, either on the teacher's side, teachers compare two kids, either on the friends and enemies side, they compare each other, either on the friend side, कि दो दोस्त एक दूसरे को कंपेयर करते हैं कि नहीं यार तू मुझसे अच्छा है, तेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, वो सब चीजें, राइट. तो वो चीजें थी. Then you ask me a question about what I see in youth. So I see spark in youth. मैं बस यूथ को जितने भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ, मैं इसे ये बोलता हूँ, आपके पास एक आइडिया होना चाहिए. जरूरी नहीं है वो आइडिया बहुत बड़ा हो, जरूरी नहीं है वो आइडिया बहुत छोटा हो, जरूरी नहीं है कि वो आइडिया एक आइडिया ही हो. इट शुड बी अ वियर्ड रॉ, बहुत ही छोटा सा, एक हल्का सा, बहुत छोटा आइडिया. इट विल वर्क, राइट. आई जस्ट नीड रफ स्केच. एक रफ स्केच चाहिए मुझे कि व्हाट डू यू वांटेड टू डू. आप मुझे वो रफ स्केच दे दो. मैं यूथ से बोलता हूँ, मैं ये गारंटी लेता हूँ, आज के जमाने में गारंटी किसी भी चीज की नहीं है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको रफ पिक्चर की ओरिजिनल पिक्चर, बिल्कुल एक फ्रेम्ड पिक्चर बना के दूंगा, एंड वो भी सिर्फ हाफ एन आवर में. इट इज माय रिकॉर्ड दैट आई टेक ओनली 30 मिनट्स टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ ईच एंड एवरी यूथ, चाहे वो कुछ भी हो. दैट इज माय ओन कैपेसिटी, आई कैन से दैट इज माय ओन पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ, yeah, towards vision or towards youth. Because see, I believe that बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बहुत सोचने के बाद भी नहीं कर पाता है इंसान, एंड बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो क्विक 1 सेकंड में जाती हैं. बिकॉज सोचने की जरूरत पड़ती ही नहीं है. हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, वी गो इनटू डिफरेंट रॉन्ग डायरेक्शन. बट जहां पे इफ यू से यू वांट टू बाय अ पेन, तो आप सोचोगे क्या कि पेन कौन सा खरीदूं? नहीं,
आपको पेन खरीदना है, आप बाजार गए, आपको जितने रुपए खरीदना है, आपको पता है कि आई वांट टू बाय 5 रुपीज पेन, 10 रुपीज पेन, यू वेंट इनटू द शॉप, यू आस्क फ्रॉम द शॉपकीपर, भैया आई वांट अ ब्लू पेन, ब्लू जेल पेन और डॉट पेन, so you tell him that I want a blue gel pen of 5 rupees, so he will be giving you Renault का पेन, 5 रुपए वाला Renault मेरा जेल, सिंपल एज दैट। अब वहां पे मैंने सोचा कि नहीं जी, अरे 5 रुपए में तो ये इतनी सारी कंपनियां आती हैं, कितना खरीदूं, अब अच्छा चला नहीं चला, अगर बुरा चला तो वहां पे काम खराब हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, एंड देन यू विल बी हैविंग डिफरेंट मतलब डाउट कि नहीं यार इस कंपनी का नहीं, इसका ले लेता। But when you went there, you just pick up pen, you came home, you wrote with that pen, काम खत्म, है ना? That is whole story out here. एनर्जी, तो आपने ये फील किया है, फाइंड किया है कि दैट इज एनर्जी। यूथ अभी एवर एक्टिव है, एवर इन्फ्लुएंस होने के लिए रेडी है। हम देखते हैं इंटरनेट में यूथ और यंग जनरेशन कैसे कैसे तरह से इन्फ्लुएंस होती है, और वो Yeah. एक्टिवली सारे ट्रेंड्स में, सारे फैशन में, सभी चीजों में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रही है। सो आई कंप्लीटली एग्री विथ यू दैट करंट यूथ, especially the youth of India, is ever active and ever ready to be participated in any mission, any trend, any fashion. But अभी मेरा व्यू यहाँ से थोड़ा डाइवर्ट होता है कि अभी ये जो एनर्जी है, आपने कहा कि स्पार्क मुझे दिखता है, तो ये स्पार्क है वो चैनलाइज कैसे करें हम? स्पार्क चैनलाइज करने के लिए जो बेस्ट सोर्स है अभी, जनरलाइज सोर्स जो सभी के लिए, पूरे इंडिया में सारे यूथ के लिए एप्लीकेबल हो, वो है एजुकेशन। और एजुकेशन को मैं ऐसे ही डिस्क्राइब करता हूँ, उसकी इम्पोर्टेंस को, कि एंशियंट टाइम्स में, पुराने समय में हम ऐसे मूवीज में देखते हैं कि एक राजा और 2 राजा, ये राज्यों के बीच में लड़ाई होती है, तो एक राजा ऐसी तरकीब अपनाता है, योजना अपनाता है कि भाई दूसरे राज्य की जो नदी जा रही है उसे ही हम ब्लॉक कर दें, तो उसकी पूरी जनता, पूरा राज्य, पूरी प्रजा, सब वो पानी से ही वो उसकी खत्म हो जाएगी। ये स्ट्रेटजी वो लोग सोचते थे। तो इसी एग्जाम्पल को मैं एजुकेशन के साथ एप्लीकेबल मानता हूँ कि एजुकेशन ही ऐसी चीज है कि ये मेन सोर्स है जहाँ से यूथ को हम चैनलाइज कर सकते हैं, उसके इन्फ्लुएंस को। बिकॉज अभी देखो, हमने ये तो पॉइंट एस्टेब्लिश कर लिया कि यूथ है वो इन्फ्लुएंस तो हो सकती है कैसे भी तक, और वैसे भी इंटरनेट के एज में, इंटरनेट के जनरेशन में, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि फायर और व्हील के बाद इंटरनेट ही एक ऐसा इन्वेंशन है जो रेवोल्यूशनरी है, जिससे हम every corner of the world we can spread our ideas. But where is the main problem? The problem lies in the direction of the influence. हम देखते हैं आजकल के ट्रेंड, कैसे कैसे ट्रेंड स्प्रेड होते हैं यंग जनरेशन में। जैसे कि वो विनोद का वो बीच में आया था, विनोद, फिर मौज करा दी, ऐसे सब ट्रेंड्स, मीम्स और वो सब। और एक था कि पबजी बैन हुई थी, तब हमारा यूथ कितना आउटरेज हो गया था, एंगर्ड हो गया था। तो इन्फ्लुएंस तो है, बट इन रॉन्ग डायरेक्शन। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हाउ एजुकेशन प्लेज अ रोल इन इन्फ्लुएंसिंग अ यूथ? Okay. So see, when I talk about education, तो मेरी definition of education थोड़ी different है, ठीक है? मेरी जो definition है education की, वो lie करती है on the practical ground. मुझे समझ में नहीं आता एंट्रेंस एग्जाम, मुझे समझ में नहीं आता कि आप किताबी रट रहे हो, पढ़ रहे हो। आई डोंट गेट दीज थिंग्स। आई ओनली नो एजुकेशन इक्वल टू प्रैक्टिकल नॉलेज। व्हाई? बिकॉज वो प्रैक्टिकल नॉलेज ही है जो आगे जाके यूथ को कुछ प्रूफ देगी, है ना? धंधा करने की तमीज अगर यूथ को चाहिए तो वो किताब पढ़ के कभी नहीं आएगी, वो अपने घर से बाहर निकल के प्रैक्टिकल करने से ही मिलेगी। क्योंकि धंधा किताबों के जरिए नहीं होता है, धंधा होता है इसके जरिए, और ये कमाने के लिए किताब नहीं चाहिए होती, ये कमाने के लिए चाहिए होता है जिगरा, रिस्क। हमारे कॉमर्स में बोलते हैं रिस्क। डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? और रही बात एजुकेशन की, तो प्रैक्टिकल जो मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज, तो प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब क्या है मैं बता दूं। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब है जो हमारे स्कूल और कॉलेज नहीं सिखाते हैं, जैसे कि पीरियड एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, क्लाइमेट एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट,
ये चीजें, ये कुछ 6 चीजें बताई मैंने आपको, ये 6 चीजें ऐसी हैं जो कोई स्कूल कोई कॉलेज 364 डेज पढ़ाता ही नहीं है। अगर पढ़ाएगा सिर्फ एक दिन की वर्कशॉप करा देगा, एक हफ्ते की वर्कशॉप करा देगा बस। और मैं समझता हूँ ये टॉपिक ऐसे हैं जो वर्कशॉप 7 दिन की वर्कशॉप में कवर होने वाले नहीं है। ये टॉपिक लाइफ टाइम के हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में आज की डेट में इन सारे टॉपिक पर बोलने की, नॉलेज लेने की, इनको अप्लीकेबल करने की जरूरत है, क्योंकि वो स्कूल एंड कॉलेज में सिखाए नहीं जाते हैं। हमारे स्कूल कॉलेज क्या सिखाते हैं हमें कि पैसे कैसे कमाओ ये सिखाते ही नहीं है, पैसे क्यों कमाओ ये भी नहीं सिखाते हैं। वो तो सिखाते हैं किताब पढ़ोगे तो पैसा आएगा, किताब पढ़ोगे तो पैसा आएगा, विच इज नॉट द राइट आइडिया। अब एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, अगर आपने पढ़ी हो, दैट इज द बेस्ट बुक फॉर इंडियन, हाँ, that is the best book for Indian youth if they wanted to learn that what is the difference between a rich and a poor and why is that difference, वो difference क्यों है। वहां पे भी बात फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक किसी चीज की हुई है, एजुकेशन। रिच डैड को एजुकेशन कैसी मिली है, पुअर को कैसे मिली एजुकेशन, राइट। रिच डैड बोलते हैं कि रिस्क लो, पैसा इन्वेस्ट करो, पुअर डैड बोलते हैं रिस्क मत लो, पैसा बचा के रखो। तो यहाँ बचा रहे हैं इसलिए गरीब है, वहां वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो रिच है। ये बात सोचने वाली है। आप एक बात सोचो, एलोन मस्क जो कि आज की डेट में वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है या सेकंड रिचेस्ट पर्सन है, तो वो बैड डेथ में था, ही वाज इन डेथ में था वो, उससे वो ऊपर उठ के आए और आज 3 महान या मैं बोलूं 4 महान कंपनियों के मालिक है। पेपल, स्पेसएक्स, टेस्ला और सारी ही कंपनियां अपनी फील्ड की बादशाह हैं। एवरी कंपनी ऑफ हिज आर अ ट्रेंडसेटर, आर अ चेंज मेकर, राइट। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट करा, उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी थी, कॉलेज ड्रॉप आउट थे वो भी, किताबें उन्होंने भी नहीं पढ़ी थी, उन्होंने जो किताबों में था उन्होंने उसको प्रैक्टिकलिटी में पढ़ा था। किताबें ना पढ़ के किताबों को प्रैक्टिकलिटी में पढ़ा था उन्होंने, वो बहुत जरूरी बात है। तो आई फील दैट दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वही बात है ना, अभी के यूथ में ये एक माइंडसेट उनका ऐसा आ गया है कि पहली बात कि एग्जाम के लिए वो पढ़ते हैं। तो मैं पर्सनली बात करूं तो मैं खुद अभी मेरी एग्जाम गई, वो मैंने एग्जाम क्लियर करने के लिए ही खोली थी, वरना मेरी हॉबीज ऐसी ही है कि जो हमें वैल्यू दे। आपने जैसे कहा कि वैल्यू गिविंग एजुकेशन इज द बेस्ट एजुकेशन, दैट विच वैल्यूज अस इन 5 years, इन नेक्स्ट 10 years, दैट इज एजुकेशन। तो मैंने जब मेरी बुक खोली तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये जरूरी नहीं है, और इससे बाहर की जो एक चीज है जो मैं मिस कर रहा हूँ। और हमारा माइंडसेट तो ऐसा है ही कि भाई यहाँ से पढ़ो और वहां पे हम डाल दो, एग्जाम के पेपर में डाल दो। और दूसरी बात, हमारा माइंडसेट तो पहले से ही ऐसा है, बट पेरेंट्स का भी यही है कि वो अपने बच्चों के थ्रोट्स पे ऐसे नाइफ रखते हैं। ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है कि वो भी एक सिक्योर जॉब और सेफ करियर और सेफ फ्यूचर और वो सब के बहाने कुछ अलग सोचते नहीं है, और बुक में से पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वो इन सब चीजों के बारे कभी सोच ही नहीं पाते और समझ ही नहीं पाते कुछ। उनको कुछ नया हम सिखाने को और नया कुछ कराने को प्रोत्साहन देते हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि ये मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे ये नहीं मिलता। तो इन्हें ये सब बुक से और यहाँ से टाइम ही नहीं मिलता, और वो कभी ऐसा कुछ सोचते ही नहीं है। तो एक पॉइंट मुझे ये लगता है कि एजुकेशन अगर हमें ये ना सिखाए कि व्हाट टू थिंक, बट ऐसा सिखाए कि हाउ टू थिंक, तो कैसा रहेगा। क्योंकि इंडिया, ये मैंने एक थॉट पढ़ा था कि इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड फेनोमेनल बीइंग्स नॉट बिकॉज they were taught what to think, but because they were taught how to think। ये देखो, इंडिया, एंशिएंट इंडिया का पहले से ही ये रहा है, उनका एजुकेशन टोटली प्रैक्टिकल था 100%। हमारी प्रीवियस डिस्कशन में हम ये कह सकते हैं कि अभी का एजुकेशन उतना प्रैक्टिकल नहीं है जितना पहले था, और ये प्रैक्टिकलिटी हमें एक सोल देती है, इंडिविजुअलिटी देती है। और हमारे एंशिएंट इंडिया में पहले से ही ऐसा हुआ था कि हम एक्सटर्नल चीजें बाद में सेकेंडरी मानते थे, उनको पहले इंटरनल समझते थे।
how exactly the mind thinks. First, we should know that, and then let that mind to think about anything, everything else around that mind. तो हाउ टू थिंक, तो ये हम एजुकेशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? एनईपी 2020 है, उन्होंने भी थोड़ा ऐसा समझा है, बट इतना ज्यादा डीप में वो नहीं गए इस चीज पर, बट अभी उनको भी थोड़ा थोड़ा रियलाइज हुआ। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे ऐसे बैठ के बातें कर रहे हैं और कुछ होगा नहीं आगे, हुआ है। इसलिए ये चीज अभी करंट हॉट टॉपिक है। इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उनका इंट्रोडक्शन है, वो पूरा इसके ऊपर ही बेस्ड है। मॉरल एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, मैन मेकिंग एजुकेशन और वैल्यू गिविंग एजुकेशन। तो ये जो चीज है कि हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक, तो ये हम एजुकेशन के करिकुलम में और सिलेबस में कैसे बिठा सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स है उनका भी माइंडसेट बदले और पेरेंट्स को भी ये रियलाइज हो कि उनके बच्चों का फ्यूचर तभी सिक्योर होगा जब वो सोचना सीखेंगे कि हम कैसे सोचे, नॉट व्हाट टू थिंक। ये हम कैसे बिठा सकते हैं? डेफिनेटली सी, इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी 10th के एग्जाम कैंसिल हुए, राइट? 10th के बोर्ड कैंसिल हुए एग्जाम। अब आप एक चीज देखिएगा, 10th के बाद जो यूथ 11th में जाते हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया? अगर आप क्राइटेरिया देखें, जो टॉपर्स होते हैं दे गो टू साइंस स्ट्रीम, एवरेज वाले जाते हैं कॉमर्स में, जो बिलो एवरेज होते हैं जाते हैं आर्ट्स में। सो इज दिस द राइट क्राइटेरिया? कंडीशन It is not the right criteria, right? अगर जो बंदे के आई गेस 50 मार्क्स आ रहे हैं 10th में, 50% आ रहे हैं, उसको आप आर्ट्स दे रहे हो एंड मे बी हिज इंटरेस्ट लाइज इन साइंस, राइट? आई गेस इंडिया के 50% स्कूल में यही होता है कि अगर उसके 50% आ रहे हैं 10th में तो उसको साइंस लेने को मिलेगी नहीं, इफ यू वांट देन आल्सो, राइट? सो आई फील दैट ये चीज को ब्रेक करना अभी के टाइम में ये बहुत सही चीज हुई है। जो एग्जाम कैंसिल हुए हैं, इट्स द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर ऑल द यूथ टू शिफ्ट फ्रॉम 10th to 11th। अब क्या होगा, जिस बच्चे के 50% भी 10th में आने वाले थे, आ भी रहे हैं, he can also choose science stream because उसने बोर्ड दिया ही नहीं है। he can choose। लोग समझ ही नहीं रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बोर्ड कैंसिल हो गए, गलत चीज हुई है। मैं मानता हूँ गलत चीज हुई है, बट अगर आप सही चीज देखोगे, सही चीज बहुत बड़ी हुई है कि ये पैटर्न चेंज हुआ है। जो होता है ना बोर्ड का हुआ कि आपके अगर 100% नहीं आए तो साइंस नहीं मिलेगी, 90% साइंस नहीं मिलेगी, वो ब्रेक हुआ है। एंड वो ब्रेक होना बहुत जरूरी था, बिकॉज वो यूथ की मेंटल स्टेट, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पीयर प्रेशर, उन सब पे अटैक करता है, you know। So what I felt was that this thing of not taking the exam is the biggest thing। why? अभी आपने देखा होगा इसका सब्सिडी क्या आया है, the subsidy और the इसका जो नेक्स्ट स्टेप आया वो ये आया है कि जो प्रैक्टिकल्स हुए थे 10th के, जो इंटरनल्स हुए थे, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग होगी। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इंटरनल्स हुए थे, वो इंटरनल्स क्या थे? वो इंटरनल्स थे स्मॉल टेस्ट जो क्लास में होते हैं, स्मॉल टेस्ट होते हैं, या फिर जो प्री बोर्ड होते हैं वो होते हैं। तो ये उसके अकॉर्डिंग मार्क्स, अब जो मार्क्स आएंगे 10th के वो उसके अकॉर्डिंग आएंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज आई फील दैट ये चीज एवरी ईयर करनी चाहिए, दैट इंस्टेड ऑफ कीपिंग अ बोर्ड बिगर नेम, instead of keeping a bigger name of board and pressurizing youth, एक साल में 3 to 4 different practical exam, not this writing of the paper but something practical। like if I could give you an example, अगर English का पेपर है, instead of giving those questions जो चैप्टर में क्वेश्चन आंसर और वो सब चैप्टर पढ़ के देंगे, what we can do is you can give comprehension। comprehension से क्या होता है, स्किल्स डेवलप होती हैं टू फाइंड आउट दैट एक रीजनिंग आती है, रीजनिंग चैप्टर, रीजनिंग पार्ट में भी कॉम्बिनेशन आती है, कॉम्प्रिहेंशन, एक्सर्शन, रीजन, वो सब आती हैं। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट लिटरेचर पार्ट जिसमें इंसान को रटना होता है, उसके अगेंस्ट में अगर हम लोग कॉम्प्रिहेंशन इंट्रोड्यूस करें या इंग्लिश के ऐसी स्किल्स डेवलप करें जिससे जो यूथ है उनकी राइटिंग, उनकी स्पीकिंग, उनकी ओरेटरी स्किल्स डेवलप हो। बिकॉज इंग्लिश इज ऑल अबाउट डेवलपिंग देयर राइटिंग एंड रीडिंग एंड लिसनिंग, राइट, जो कि आपकी आईएलटीएस में काम आती है। बिकॉज
एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश इज आईलेट। आईलेट में क्या होता है, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, इन तीनों पे जजमेंट होता है, मार्किंग होती है। तो सेम चीज अगर अप्लाई हो जाए इनटू आवर एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज इंग्लिश पढ़ाने का अल्टीमेट मोटिव यही होता है, इंग्लिश लिखना आ जाए बच्चे को, पढ़ना आ जाए, सुनना आ जाए। ये तीन चीज के लिए अगर आप प्रैक्टिकलिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो आई फील दैट आपका मोटिव भी सेटिस्फाई हो रहा है, यूथ को कुछ अलग भी मिल रहा है rather than उस बुक को रटना, राइट? सो दैट इज आई फील द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके आइडिया पे मैं एग्री होता हूँ, बट उसी आइडिया को एक्सटेंड करें हम, तो मैं ये भी सोचता हूँ कि आपने ऐसा कहा कि इंग्लिश के पेपर में हमें कॉम्प्रिहेंशन और प्रैक्टिकल ये सब एनालाइज करके खुद से ही उसके आंसर्स और वो सब फाइंड करने का एग्जाम में देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले तो उनको जो मिलना चाहिए वैल्यू वो भी मिलेगा, बिकॉज उनके पास कोई और अदर वे है ही नहीं। और दूसरी बात कि अगर देखो ऐसा ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम हो कि इंग्लिश, अभी इंग्लिश का एग्जाम्पल लेते हैं कि 10th के बोर्ड्स में इंग्लिश का जो एग्जाम है उसमें हम एक मैम है वो सारे अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग बुक्स है वो पूरी बुक एनालाइज करने को दे देता हूँ। कोई एक सिंपल कैटेगरी, कोई एक जॉनर है वो जो नॉन फिक्शन और प्रोडक्टिव कोई बुक हो, तो पूरी बुक को एनालाइज करो आप अपने आप से, उसमें ग्रामर भी आ गया, उसका अंडरस्टैंडिंग भी पता चल जाती है स्टूडेंट की कि कैसे वो बुक को अंडरस्टैंड करता है। वो पूरी बुक रीड करेगा, उनमें से क्या अच्छे आइडियाज थे उनकी नोट्स भी बन जाएगी, और फिर क्वेश्चंस आएंगे तो ऑफकोर्स वो उसके बुक में जो वैल्यू है वो वैल्यू भी मिल जाएगी उसको, बच्चे को। तो ये, और ये रीडिंग का भी बहुत वो करता है, बच्चों को डेवलप कराता है रीडिंग का। और आई फील दैट रीडिंग पावर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये बात इसे प्रैक्टिकल मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो मैंने 9-10 ईयर्स में मैंने जो एजुकेशन लिया है उससे ज्यादा लॉकडाउन में मैंने जो बुक्स पढ़ी है नॉन फिक्शन और प्रोडक्टिव बुक्स, आपने जैसा कहा रिच डैड पुअर डैड, वैसी कई सारी बुक्स है। और ये सारी बुक्स हमें सिर्फ रीडिंग आ जाए ना, और हमें अगर हमारे में सेल्फ स्टडी करने की जो ये एबिलिटी है ना, हमने जैसे पहले बात की, नॉट व्हाट टू थिंक बट हाउ टू थिंक, बस ये एक अंदर से आ जाए ना, तो फिर हम अपने आप से ही सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और हमारे पास तो ये सब है भी, इंटरनेट और वो सब, उनमें से उसमें से तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, कोई भी बुक और वो सब। तो ये एग्जाम की चीज है वो भी बहुत सोचने जैसी है कि एजुकेशन को हमें चेंज करना है तो एग्जाम की सीरियसनेस और एग्जाम के प्रति जो ये लोगों का, ये बच्चों का और उनके पेरेंट्स का जो माइंडसेट है वो भी चेंज होगा अगर हम एग्जाम्स के ऊपर पर्टिकुलरली ध्यान दें तो। अभी एग्जाम्स के बारे में हमने बात कर ली, पर और एक चीज है जो बहुत ये डिफेक्ट कह सकते हैं हम सिस्टम का, कि अभी भी नाउ ऑल्सो हम इंफॉर्मेशन गिविंग एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा है उतना ही कोई जो है वो एजुकेटेड हम गिनते हैं उसको। तो इन्फॉर्म अभी देखो, क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इन दिस नेशन अ सिटीजन फर्स्टली मस्ट बी मॉरल, must know how to interact with this society and how to live in the society morally, with unity, with trust। तो अगर हमें देखो एजुकेशन का मेन फंक्शन क्या है कि भाई जो हमारे पहले इन्वेंशन सारे हुए हैं, हमारे पहले जो लिटरेचर में जो नॉलेज और वो सब हुई है वो हम हमारे टेक्स्ट बुक में से और हम खुद जान ले, और फिर उसी नेशन को अभी आगे इसी टाइमलाइन में हम खुद अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दे, अपने प्रोग्रेस दे। जैसे कि मैंने साइंस में पढ़ा कि भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की ई इक्वल एमसी स्क्वायर और वो सब थियोरम्स निकाले थे, आइजैक न्यूटन ने ये निकाले, तो मैं पहले खुद पढ़ूंगा, उनको समझूंगा, और फिर उसी फील्ड में अगर हो सके तो अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दूंगा। तो ये मेन मोटिव होता है एजुकेशन का। बट अभी क्या हो रहा है, अभी इंफॉर्मेशन गिविंग एजुकेशन है, अगर हम इंफॉर्मेशन गिविंग से ज्यादा मॉरल एजुकेशन में फोकस थे, तो अगर कोई सिटीजन अपनी कंट्री के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट ना करे बट कोई खराब चीज ना करे तो भी अच्छी बात है ना। मॉरली अगर वो अच्छा हो तो वो कंट्री को आगे ना बढ़े कोई बात नहीं, बट जो खराब काम है, जो असामाजिक चीजें करता है, तो वो तो ना करे कम से कम। इफ दैट does not hinders the progress of the country, at least it does not disturb the country। तो ये हम अगर मोरल एजुकेशन को ज्यादा फोकस में ले, उसे प्राइमरी गिन के इंफॉर्मेशन गिविंग को सेकेंडरी गिने, वो कैसा रहेगा? सी इसके लिए आई हैव अ थिंग, आज के जो यूथ है ना वो सर्विस टेकर हो गए हैं,
दे टेक सर्विसेज, है ना, सर्विस गिवर नहीं है, सर्विस के वो चीजें लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। अब मैं जो बात कर रहा हूँ चीजें लेना या देना, उसका सिंपल एग्जांपल है, अब यूथ के पास बल्ब है, बल्ब उनको मिला है, ठीक है, बल्ब उन्होंने लिया है, एक तरीके से हम लेके आएंगे, बल्ब लिया है, उन्होंने खुद इन्वेंट नहीं करा है। अब अगर आप उनको बोलो कि आप बल्ब को खुद इन्वेंट करो या बल्ब जैसा कुछ इन्वेंट करो या बल्ब से अच्छा कुछ इन्वेंट करो, नहीं करेंगे। क्यों? दे आर सेटिस्फाइड, दे हैव सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन है इतने में कि हाँ यार ये है, काफी है। तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए, वो हंगर हमेशा रहनी चाहिए, वो स्पार्क रहना चाहिए, वो भूख रहनी चाहिए कि हाँ अगर मेरे पास इतना है तो नहीं, मेरे को इतने के लिए काम करना है, इतना है इतने के लिए काम करना है, इतना है इतने के लिए काम करना है, वो चीज हमेशा रहनी चाहिए। तभी इन्वेंशन होगा। इन्वेंशन तब होता है जब आवश्यकता होती है, अगर आवश्यकता ही नहीं होगी तो इन्वेंशन कभी नहीं होगा। और आवश्यकता के लिए भूख जरूरी है, अगर भूख नहीं होगी तो आवश्यकता भी नहीं होगी, है ना। हमारा पेट क्या मांगता है? खाना मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि आवश्यकता है उसको। अगर आवश्यकता ही नहीं होगी तो हम लोग खाना ही नहीं खाएंगे ना, वो जरूरी है। आवश्यकता से ही आविष्कार होते हैं, अगर आवश्यकता नहीं है आविष्कार भी नहीं होंगे। तो हमको पहले यूज को ये सिखाना है, डोंट सेटिस्फाई फॉर लेस, ट्राई टू एक्सप्लोर फॉर एज मच थिंग एज यू कैन। अगर कल को ये बल्ब बना है तो इस बल्ब से भी कुछ अच्छा बन सकता है। अभी हमारी वर्ल्ड में सिर्फ 1% ही इन्वेंशन हुए हैं, 99% इन्वेंशन अभी और रहते हैं। अगर आज हम लोग सीमेंट से घर बना रहे हैं, मे बी कल को कुछ और अच्छा यूनिक चीज आ सकती है जिससे सीमेंट को रिप्लेस कर सके, है ना। तो वो चीज है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा पहले क्या था, पेट्रोल से चलती थी कार जो रन बाय पेट्रोल, नाउ दे आर रनिंग बाय सोलर कार, राइट। दूसरी चल रही है। अब सुनने में आ रहा है पानी से चलने वाली बन रही है, हवा से चलने वाली कार भी बन रही है। ये क्या है? ये भूख ही तो है, ये सेटिस्फाई ना होना ही तो है। टेस्ला कार क्या है? टोटली ऑटोमेटिक कार है, इलेक्ट्रिक टोटली ऑटोमेटिक कार है। क्यों बनी वो? भैया हाथ से चलाने वाली कार जो थी ना, हीरो होंडा मारुति की चल रही थी ना हाथ से, तो टेस्ला ने क्यों ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कार बनाई? इसलिए बनाई क्योंकि वो हंगर थी उनके पास ये था कि नहीं जी ये चीज बन गई है, अगर हैंडमेड व्हील्स वाली कार आ गई है तो इससे कुछ और बेहतर, कुछ और अच्छा आना ही चाहिए। और वो भूख, वो सेटिस्फैक्शन ना लाना इज वॉज द मेन रीजन बिहाइंड टेस्ला। टेस्ला के पीछे का रीजन ये नहीं था कि एलन मस्क को वो आइडिया आया, उनको वो आइडिया ही इसलिए आया क्योंकि उनको भूख थी। अगर उनको इन्वेंशन की भूख नहीं होती, अगर उनको जरूरत नहीं होती डिफरेंट सोचने की, तो फिर आज टेस्ला नहीं होती। आज भी हम लोग सिर्फ उसी हैंडल वाले कार के ही जरिए सोच रहे होते, या उसी तक हमारी सोच सीमित होती। लेकिन सोच को सीमित नहीं करना है, सोच को डिफरेंट डायरेक्शन में खोलना है, तभी जाके जो होता है ना, वो मैंने बताया था आविष्कार और वो चीजें वो हो पाएंगी। यस, तो वही बात है कि अभी का जो एजुकेशन है वो ब्लंटली फैक्ट्स में बता देता है। ब्लंटली हम पढ़ भी लेते हैं और आगे कुछ क्वेश्चन कर भी नहीं लेता। और हमारे ऊपर पहले से ही प्रेशर रहता है सारी चीज का। हमारे भी माइंडसेट अभी कंडीशन हो गए हैं। हमारा 100 इयर्स का जो लाइफ स्पैन है ह्यूमन लाइफ, अभी तो 100 इयर्स का भी नहीं रहा है, वो 60-70 पे आ गया है। तो ये लाइफ स्पैन में जो 15 इयर्स है वो हम एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। वाई? टू गेन सम वैल्यू आउट ऑफ दैट। बट what the current education provides us, what value, for what value are we studying it? We never ask that question to ourselves. We just study it but without knowing why it is. So this question why, the question why never comes, how never comes. And आपने जैसे कहा कि भूख नहीं जागती, भूख कहाँ से जागती है? क्वेश्चनिंग से। तो क्वेश्चनिंग, देखो मैं एक ही चीज मानता हूँ कि जो सच्चा ज्ञानी है और जो सच्चा आइडियल मैन है, जो आइडियल एजुकेटेड मैन होना चाहिए, वो हर एक चीज को क्वेश्चन करना चाहिए ना। आंसर्स तो सभी के पास है, अगर क्वेश्चन ही होगी तो ही हमारी ये जो क्वेस्ट है, हमारी ये जो जर्नी है वो आगे बढ़ेगी। तो अभी के एजुकेशन सिस्टम में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये भूख बढ़े, ये क्वेश्चनिंग बढ़े हमारी?
कंक्लूजन ही ये आ गया हमारा कि हम पढ़ तो रहे हैं बट क्यों पढ़ रहे हैं ये नहीं पता। इन्वेस्टमेंट हमने की 15 इयर्स की बट जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ का वो यही नहीं सोचते कि भाई व्हाट वैल्यू विल दे गेट। और वैसे भी वहां से भी एजुकेशन भी हमें ऐसा ही मिलता है कि सभी चीज एक साथ। हम कुछ थोड़ा इंजीनियरिंग का पढ़ते हैं, थोड़ा आर्ट्स का पढ़ते हैं, थोड़ा डांस कर लेते हैं बीच में, थोड़ा कॉम्पिटिशन्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा फिर मैथ्स पढ़ लेते हैं। सभी चीज वहां से भी हमें से खिचड़ी में मिलती है और हमें भी फिर उसे ऑर्गेनाइज करना नहीं आता, उसे क्वेश्चन करना नहीं आता और उसे हमारे फ्यूचर में कैसे वैल्यू उसकी बढ़ाए हम अपने ही माइंड में और कैसे हम उसको यूज करें वही हमें नहीं आता। तो उसका हम क्या करें? ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आ गया। वी डू नॉट नो व्हाट इज द फिलोसॉफी बिहाइंड एजुकेशन। एजुकेशन क्यों है उसकी हमें फिलोसॉफी ही नहीं पता। सो हाउ कैन वी प्रोग्रेस लाइक दैट? और ये बात देखो, कोर्सना तो सबको आता है, एजुकेशन ऐसा है, सिस्टम ऐसी है, ये सबको करना आता है। अभी मैं ये चौक में वो पान वाला है उसे भी पूछूंगा तो वो भी 2-3 एडवाइस एजुकेशन के ऊपर देगा। एडवाइस तो देंगे बट ये स्प्रेड कैसे होगा? और ये स्प्रेड तो स्प्रेड भी हो, हम अभी क्या कर रहे हैं? स्प्रेड कर रहे हैं बट ये अप्लाई कैसे होगा? फिर आपने भी आपके साथ भी ऐसी कई चीजें बनी होगी आपके एजुकेशन के पीरियड में और मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर आप भी एग्री करते होंगे कि अभी इंफॉर्मेशन गिविंग एजुकेशन अभी वो एज गई। बिकॉज इंटरनेट में अभी मेरी स्कूल में सारे सब्जेक्ट के सारे टीचर्स हैं, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस, ये मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, उसके भी सारे स्ट्रीम्स, सभी टीचर्स हैं मेरे सारे सब्जेक्ट के। उनको मैं कंबाइन कर लूं उससे भी ज्यादा, उससे भी वास्ट और उससे भी वेरिड नॉलेज इंटरनेट के पास है। तो क्यों हम एजुकेशन में 15 इयर्स वेस्ट कर रहे हैं वही चीज को देखने के लिए, समझने के लिए जो हमसे बेहतर इंटरनेट समझ सकता है। और हम जो एजुकेशन लेते हैं वो लास्ट में है क्या? मेमोरी। इट इज स्टोर्ड इन आवर ब्रेन्स एज मेमोरी। और वो भी हम भूल सकते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। हमें पता है इंफॉर्मेशन गिविंग ही है, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है और हमें वो नहीं पता कि वो आगे हमें वैल्यू कैसे कराएगी। हम वो सोचते भी नहीं है, ऐसे ही वो हम डाइजेस्ट कर लेते हैं और हमें वो कहाँ पे करनी है, कहाँ पे यूज करनी है वो भी नहीं पता होता। और हमें ये भी पता है कि हमसे ज्यादा वास्ट नॉलेज इंटरनेट के पास है। मेरे हाथ में जो फोन है उसके पास ज्यादा नॉलेज है, वास्ट नॉलेज है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन आ गया, बेस ही रॉन्ग है। तो वहां से क्या कैसे चेंज करें ये बेसिक क्वेश्चन को? सी, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल देता हूँ मैं अपना। आई एम नॉट अ रीडर। मैं बुक्स रीड नहीं करता हूँ, जो नॉवेल्स वगैरह होती हैं, फिक्शन होती है, मैं रीड नहीं करता हूँ। मैंने आई गेस अभी तक अपनी लाइफ में एक भी नॉवल, एक भी टच तो करी है बट हार्डली 5 to 6 पेज पढ़े होंगे, उसके अंदर बोर हो जाता हूँ, मैंने पढ़ी नहीं। ठीक है। इस लॉकडाउन में लाइक मेरे पेरेंट्स कहते रहते हैं तू पढ़ता नहीं है, रीडर नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, बुक वगैरह नहीं पढ़ता है, पढ़नी चाहिए, नॉलेज बढ़ता नहीं पाना, इंग्लिश अच्छी, वोकैबुलरी अच्छी होती है। इस लॉकडाउन में आई रोट अ बुक विदाउट बीइंग अ रीडर, विदाउट हैविंग एनी नॉलेज कि कैसे आपको कुछ करना है, कैसे आपको क्या होता है, नॉवल का एंड क्या होता है, मुझे वो भी नहीं आता है। ठीक है। बस मेरे को 2 नाम घटे हुए हैं दिमाग में, सब लोग बोलते हैं, चेतन भगत और दुर्गा दत्ता। चेतन भगत एंड दत्ता, the man who wrote his first book on his one-sided love, दुर्गा दत्ता, his name is दुर्गा दत्ता। तो इन दोनों लोगों की मैंने नाम सुना है बस कि हाँ ये लोग हैं थोड़े फेमस इस वाले। ठीक है। So what I did was I wrote a book on my personal journey, right? अपनी पर्सनल जर्नी पे नॉन फिक्शन की मैंने बुक लिखी। I wrote it on the e-book format because मुझे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना था। I wrote it on the e-book format and I released it on Kindle, Amazon Kindle KDP. So वहां पे मैंने रिलीज, तो I got a very good response from the readers जिन्होंने बुक पढ़ी अभी तक। सबका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया था कि यू हैव वेल एक्सप्रेस। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट जरूरत है आपको, नो डाउट, वो सबको होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे योर फर्स्ट बुक वाज फैट। सो नाउ इट गेव मी कॉन्फिडेंस, चलो अपने को आता है। So now what I am doing is I am releasing। आपका ये वीडियो कब रिलीज वाला है पहले बताओ? When is your video releasing? This video 26 release कब अप्रैल, होगा? विदिन 26 अप्रैल। और कहाँ पे होगा, किस प्लेटफॉर्म पे? यूट्यूब।
YouTube, great. So what I'm saying was now I am releasing that same book, the reformed version of that book, the reformed, and adding some more chapters to it, adding some more values to it. I am releasing that on the paperback format on 12th of June, right, with a dedicated publisher. Because now I gain confidence कि हाँ अब मेरे को ई बुक में मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आया था, means I have that capacity. So now I'll be using my resources to give to the youth something very constructive. And I guess जो ये बुक है मेरी, ये नॉन फिक्शन बुक है based on true one-sided love story of mine. तो ये एक आई ओपनर भी है for all the youth कि देखो एग्जैक्ट लव क्या होता है. लव इज नॉट अबाउट gaining someone or forcing someone to come into your life, but it's something more than that. So broader vision जो मेरी हर चीज जो भी मैं करता हूँ उसके पीछे का एक बहुत ही broader vision होता है, and वो कहीं ना कहीं टैग इसी में होता है to empower youth. So basically ये है तो मेरी पर्सनल जर्नी इस बुक की, एंड कुछ सेंटिमेंट जुड़े हैं, इमोशनल, कुछ हार्ड जुड़ा है मेरा इस बुक से. बहुत स्पेशल बुक है मेरे लिए. बट वो एक हाई लेवल की चीज है. बट सेकेंड पार्ट ऑफ द गेम है टू टेल यूथ, बिकॉज आजकल क्या है कि जैसे कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं. एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन, तो वो घुन जो है वो घुन ज्यादा हो गए हैं, गेहूं कम हो गए हैं. एंड वो घुन मतलब हो गया है इररिलेवेंट पीपल, टॉक्सिक पीपल जिन्होंने इस चीज को टैबू बना दिया है. और गेहूं मतलब हो गया प्यार. तो प्यार कम हो रहा है और ये चीज ज्यादा हो रही है कि आपको लस्ट है, आपको डिफरेंट सेक्सुअल डिजायर्स के लिए आप यू आर टेकिंग द नेम ऑफ लव. तो वो चीजों को ब्रेक करना एंड टू गिव टू यूथ समथिंग व्हिच इज नोन एज प्योर लव क्या होता है. दैट इज व्हाट माय बुक इज गोइंग टू जस्टिफाई. तो वो 12 जून को रिलीज होगी वो बुक. So that will be, I think, an eye opener for all the youth अगर पढ़ते हैं. And through your platform, what I am planning and what I am doing is कि जो भी कोई आपकी वीडियो देखेगा ये वाली, and जो भी कोई मेरी बुक को आपकी वीडियो देखने के बाद खरीदना चाहेगा, तो उसके लिए there are discounted coupons for all those people जो आपकी वीडियो देखने के बाद, ये वाली वीडियो देखने के बाद YouTube पे जो मेरे पास आएगा. So it's just that all those people have to take your name, your channel name, and your channel name will be the discounted coupon code. If they use that code, so they will be getting heavy discounts on that book. So that's from my side. So guys, use the code Complexity Simplified to get Mudit Bhaiya's book with a discount. और ये एक चीज आपने अच्छी हाईलाइट की कि लॉकडाउन में हमने हमारी लिमिटेशंस को, बाउंड्रीज को एक्सपांड किया है सभी ने, और सभी डायरेक्शंस में. मैं मेरी खुद की बात करूं तो पहले मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था. सिर्फ मैंने भी लॉकडाउन के पहले कोई बुक पढ़ी ही नहीं थी. बट हमने जो अभी हमारी प्रॉब्लम हमने जो डिस्कस की अभी, कि एजुकेशन ऐसा बन गया है कि उसके बारे में कोई सोचता नहीं है. 15 ईयर्स इन्वेस्ट कर देते हैं, बट वो क्यों किए, हमारे मन में जो सारी लिंक्स हमने इकट्ठा किए है, सारी चीजें इकट्ठा की है, वो हम छोड़ के, तोड़ के, मरोड़ के कैसे हम यूज करेंगे, आइडियाज बना के, भूख ला के, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की. वो मैंने क्लोजली समझी लॉकडाउन में. मुझे भी ये रियलाइज हुआ. और मैंने कितनी सारी बुक्स पढ़ी, मेनली वो नॉन फिक्शन थी, फिलोसॉफिकल थी. क्योंकि ये देखो, हमने प्रॉब्लम हमारी आ गई कि कहीं ना कहीं फिलोसॉफी में ही प्रॉब्लम है, एजुकेशन की फिलोसॉफी में ही प्रॉब्लम है. तो फिलोसॉफिकल बेस हमारा बढ़ाना, यही एक सॉल्यूशन हो सकता है. और उसमें भी मैंने जो एंशिएंट, अभी देखो प्रॉब्लम मॉडर्न है, और अगर हमें हमारा फ्यूचर कंस्ट्रक्टिव बनाना है तो हम पास्ट से भी कुछ ले सकते हैं ना. और एंशिएंट इंडिया तो एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा नेशन है कि जो 8000 ईयर्स से भी ज्यादा एंशिएंट है, पुराना है. और 8000 सालों से भी पुराना ये नेशन अभी भी यूथफुल है. 60% of this nation's population is currently youthful. So what was the national theme of this country, by which the youth, the citizens of this country, turned out to be phenomenal beings? What was the reason behind this? This was my genuine question.
और अभी भी ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन ही रखा है। मैंने बुक्स पढ़ी, कई सारी पढ़ी। अब और मैंने आपके साथ बात हुई थी मेरी, उसमें मैंने ये भी कहा था कि स्वामी विवेकानंद की भी बुक्स पढ़ी थी मैंने, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो वो अभी एक स्पिरिचुअल लीडर के नाम से नहीं जाने जाते, ज्यादा वो यूथ आइकन के नाम से जाने जाते हैं, बिकॉज उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और साइंस, फिलोसॉफी और एजुकेशन, ये सब चीजों को कंपाइल किया था। तो हम ये कर सकते हैं, अभी हम ये चीज कर सकते हैं। फिलोसॉफी को हम कैसे एजुकेशन में लाए, स्पिरिचुअलिटी हमारी जो नेशनल थीम थी इंडिया की, वो हम कैसे रीजनरेट करें, रिवाइव करें, दैट वाज द आंसर आई गॉट। और अभी भी वो आंसर को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। ऐसे हम जब पढ़ते थे, ये अभी लॉकडाउन तो अब हो गया यार वो सब, बट जब मैम कोई मैथ्स का सम देती थी तो कैसे हम आंसर्स को वेरीफाई करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट वाज योर आंसर, व्हाट वाज। और कैसे साइंटिस्ट है वो कोई डिस्कवरी करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, तो अपनी जो रिसर्च है, अपने जो कंक्लूजन है, ऑब्जर्वेशन है, वो वेरीफाई करती है कि व्हाट वाज योर कंक्लूजन, योर। तो मैं भी अभी वही कर रहा हूँ। हैशटैग व्यूज ऑन एजुकेशन, ये सीरीज में मैं सारे एक्सपर्ट थिंकर्स, एक्सपीरियंस एंड यूथ लाइक यू, सारे एरिया से जो भी टीचर्स और वो सब है, उनसे मैं मेरा कंक्लूजन शेयर कर रहा हूँ। द आंसर आई गॉट was ancient India. The finger point was on ancient India. That from there we can have something, we can learn something tremendous from it. और ये जो हमने इंस्पिरेशन की बात की कि आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली, आपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा था कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। वैसे मुझे एजुकेशन के बारे में स्पेसिफिकली कहूँ तो इंस्पिरेशन तब मिली जब मैं मध्य प्रदेश में एक वहां पे जब कृष्णा जी ने, ये मिथिकल चीज है बट हिस्टोरिक मानो, मिथिकल मानो, जो मानो वो, बट इंस्पिरेशन मुझे वहां से मिली कि ऋषि सांदीपनि का जो आश्रम था वहां पर, मध्य प्रदेश के उज्जैन के बाजू में ही है, उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में ही है वो सांदीपनि आश्रम। तो मैंने वो सांदीपनि आश्रम विजिट किया कि जहां पर श्री कृष्ण ने विद्या ली थी सारी। तो वहां पर मैंने देखा कि उस टाइम के समय एजुकेशन, ऋषि सांदीपनि ने जो एजुकेशन श्री कृष्ण को दिया था वो था 64 कला का। वो प्राइमरी एजुकेशन था, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन, और वो एजुकेशन था 64 कला। अभी इसका मतलब ये होता है 64 आर्ट्स। अभी इसमें सब चीज आ जाती है। उस जमाने में जो चीज एप्लीकेबल थी, जो प्रैक्टिकल नीड्स थी नेशन की, कौशल्य, युद्ध, ये सारी चीजें, कला जो होती अलग अलग, अभी तो ये सब आ गए हैं इसलिए अभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट तभी के लिए ये जो 64 कला थी, उसमें कैसे हम फ्लावर पॉट्स बना सकते हैं, कैसे हम चीजों को सी सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं, योग और वो सब, समाज शास्त्र, कितने सारे शास्त्र, वेद, दर्शन, न्याय, ये फिलोसॉफी पहले सिखाते थे बच्चों को, विद्यार्थियों को, और ये अभी एक्सटेंड हो गई है। और ये एक नेशनल थीम थी हमारी, और हर एक नेशन को देखें हम, उसकी एक नेशनल थीम है। यूरोप की है पॉलिटिक्स, सोशलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, वो पास्ट से ही वही यही डॉक्ट्रिन्स में मानते हैं ना। यूरोप का हम अभी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, उसकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री। ये हम पढ़ते हैं ग्रीस का, तो ग्रीक फिलोसोफर्स पढ़ते हैं हम, उसका जो मैनेजमेंट था, सोशल एनवायरमेंट था, तब तो हम वो पढ़ते हैं। तो वैसे ही इंडिया की जो नेशनल थीम है वो उसका कल्चर है, उसकी डाइवर्सिटी है, जो यूनिटी है, यूनिटी भी और डाइवर्सिटी में यूनिटी है। और ये जो नेशनल थीम है उसी को मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ और उसी को स्प्रेड कर रहा हूँ। और लास्ट 1 ईयर से हम बोले तो लॉकडाउन से ही मैं ये 4 चीजों पर मेन फोकस कर रहा हूँ, जो है नेशनल एंड यूनिवर्सल हार्मनी, ह्यूमन इग्नोरेंस, एंशिएंट इंडिया और हमारा एजुकेशन सिस्टम। ये 4 चीजों के ऊपर ही मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ, आर्टिकल्स लिखता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ। तो अभी जो चल रहा है व्यूज ऑन एजुकेशन सीरीज, वो उसी का एक पार्ट है। तो यही आंसर मुझे मिला। और आप सब, हमने जो बात की वो सारी बात भूल जाओ। आप अगर अपने माइंड से एजुकेशन को देखते हो तो आप क्या सोचते हो, क्या मैंने जो बोला वो एप्लीकेबल था? सो हियर आई एम आस्किंग योर व्यूज ऑन एजुकेशन, व्हाट डू यू थिंक? एजुकेशन जैसे आपने बोला वो बहुत ही सही बोला अबाउट प्रैक्टिकलिटी एंड जैसे कि जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट जो आपने बताए हैं, so those are definitely applicable. And before going into जो आज के एजुकेशन है, आई थिंक दैट the real meaning of education, why
आर वी टेकिंग एजुकेशन, वो जानना बहुत जरूरी है कि हम ये एजुकेशन ले ही क्यों रहे हैं। बिकॉज हर चीज को जानने से पहले वाई अगर हमें चल जाए पता, वाई, तो वाई इज द बिगेस्ट क्वेश्चन एंड आंसर इन इटसेल्फ। वाई एक क्वेश्चन भी है, वाई एक आंसर भी है खुद में ही। तो वाई की ब्यूटी यही है। तो वो चीज बहुत जरूरी है जो आपने बोला, दैट वाज क्लियरली टू द पॉइंट एंड परफेक्ट, एंड वाई इज द बिगेस्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये बोलूंगा मैं। So how can we apply that philosophical grounds? हम अगर वो सीखा है कि हम एजुकेशन एक्चुअली लेते क्यों है, और हमारे एंशिएंट इंडिया में कितनी सारी अप्रिशिएटेबल फाइंडिंग्स हुई है इसी चीज पर। साइंसिस हमारे जो थे वो मोस्टली फिलोसॉफिकल थे। हमने हमारे कल्चर ने सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे क्या है, फिर बाहर देखे हम। ग्रीक ग्रीक फिलोसोफर्स और वेस्टर्न फिलोसॉफी है, उन्होंने सबसे पहले बाहर से चालू किया, जिसे हम अभी साइंस कहते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं अभी, उसे उन्होंने वहां से चालू किया। बट हमने अंदर से चालू किया था, हु एम आई। और ये एक लॉजिकल थिंग भी है जो हमने की, बिकॉज जिसे हम एंड ऑफ द डे जो ये यूनिवर्स कहते हैं, वो यूनिवर्स बस हमारी 5 सेंसेस ही है। अगर हम देखना बंद कर दे, सुनना बंद कर दे, सूंघना बंद कर दे, और टेस्ट करना बंद कर दे, और फील करना बंद कर दे, तो हम यूनिवर्स कहेंगे कि सो द यूनिवर्स इज नॉट एक्सटर्नल्स बट इंटरनल्स। ये हमारा यूनिवर्स का सारा मानचित्र, सारे हम सभी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, वो बाहर की नहीं है, दिख बाहर की रही है, बट हमारे जो एक्सपीरियंस वो अंदर से आ रहे हैं। और हम कहते हैं कि हर एक आइडिया के ऊपर अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव होता है, वो इसीलिए बिकॉज अलग अलग माइंड्स ये यूनिवर्स को अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं। तो ये सारे फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स थे हमारी कंट्री के, जो हम इसे अनफॉर्चुनेटली भूल गए हैं। वो हमें यूथ को बताना पड़ेगा। और मैं ये सोचता हूँ कि एजुकेशन एजुकेशन है, अभी हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एंशिएंट मैसेज था हमारा, एंशिएंट थॉट्स और एंशिएंट विजडम थी हमारी, वो मॉडर्न यूथ को कनेक्ट करने के लिए हमें एजुकेशन का ही उपयोग करना पड़ेगा। एजुकेशन ही एक ऐसा ऐसा मीडियम है कि जिसके थ्रू हम ये एंशिएंट हमारी जो फिलोसॉफीज है वो हम उन तक पहुंचा सकते हैं। और ये योग था, ये सारी चीजें थी, वो सुपर साइंटिफिक थी, बिकॉज हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने पहले इंटरनल चीजें जान ली सारी, हाउ एक्चुअली द माइंड थिंक्स। अगर हम यही जान ले तो क्या फिर हमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये यूनिवर्स है पूरा, हम इसी से ही देखते हैं, इसी से ही इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर ये इंटरप्रेट कर ले तो ये सारा तो चुटकी का खेल है, क्योंकि यहाँ पे ही मेन सब चीजें होती है। तो ये फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगे मुझे। और इसी के ऊपर मैं आगे काम भी करने का सोच रहा हूँ, कैसे मैं ये कर सकूं। और देखो अभी अभी का यूथ क्या है, वो हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारी एंशिएंट फिलोसॉफीज और उन सबको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं भी उनको ये half half these problems, half contribution is of us also, the youth, and of the person who are spreading it, उनका भी ये प्रॉब्लम में हाफ कंट्रीब्यूशन है ही। बट हमारी तरफ से हम क्या कर सकते हैं, मैंने लॉकडाउन में यही किया है, हमारी फिलोसॉफी जानी है अंदर से डीपली। और हम क्या नहीं करते अभी का यूथ, दैट इज क्वेश्चनिंग। आपने कहा कि भूख नहीं है, मेरे में फॉर्चुनेटली भूख जागी, तो मैंने डीप में ये पढ़ा सब एंशिएंट इंडिया का, कि एंशिएंट इंडिया में फिलोसॉफी क्या थी सारी डीप में। और अभी का यूथ अगर ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं करता तो उसके 2 रीजन है। एक तो ये कि हम अंदर डीप में गए ही नहीं है, हम वहां से ही सब नकार देते कि भाई सुपरस्टिशन था, अंधविश्वास था, ये था वो था। बट ये सब चीजें तो 1800 और वहां सब राजा राम मोहन राय के पीरियड से ही आई है ये सब। हम अगर इस कंट्री की हिस्ट्री की बात करें तो हजारों सालों से तो स्टार्ट होती है। हम कोई दूसरे कंट्री जैसे नहीं कि 200 साल पहले एग्जिस्टेंस में आए। तो ये हम अंदर डीप में जाए और इसकी फिलोसॉफी समझे, तो ये अभी के मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत, ये हम कहते हैं ना डिमांड और सप्लाई, ये चेन है बिजनेस का। तो अभी की डिमांड यही है, फिलोसॉफिकल बेस। क्रिएटिविटी हम किसे कहते हैं, जो अपने माइंड को सबसे ज्यादा समझता है वो अपने अपने आजू बाजू के वर्ल्ड को सबसे ज्यादा समझेगा, और जो वर्ल्ड को समझेगा वो क्या नहीं समझेगा, सारी प्रॉब्लम्स आएगी उसके पास, उसके सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो फिलोसॉफी एक ऐसी चीज है जो हमें एजुकेशन में अप्लाई करनी जरूरी लगती है। क्या सोचते हो आप इसके बारे में, लास्ट
नहीं, conclusion. true, that is true about philosophy things कि we need to really understand first कि what is in the root. Yes. जब चलेगा पता है रूट्स में क्या है, तभी हम लोग उसको आगे ले जा पाएंगे, बिकॉज नोइंग योर रूट. एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा था मैंने फॉर द आपका वो आर्टिस्ट. टैगलाइन है आर्टिस्टिक बाय नेचर का. या इट इज नोन एज नो योर रूट. तो उसका मोटिव ही यही है कि रूट्स जब तक पता नहीं हो किसी भी चीज की, यू कांट एक्सप्लोर, यू कांट रियली एक्सेल इन दैट थिंग इफ यू डोंट नो द रूट, है ना. अगर आपको बच्चे को चलना ही नहीं आएगा तो दौड़ेगा कैसे? दौड़ने के चलना जरूरी है, तो वो चलना इज रूट, तभी दौड़ेगा. तो दैट कम्स दी आई गेस द बिगेस्ट रोल प्ले ऑफ नोइंग योर रूट. एंड मोर देन एवरीथिंग उस रूट्स को जानने के लिए आपको बहुत चीज समझनी पड़ेंगी, बहुत चीजें जाननी पड़ेंगी. रूट्स के लिए भी रूट, बिकॉज बहुत डीप है इंडिया का पास्ट, इंडिया की हिस्ट्री, एंड मोर देन हिस्ट्री एंशियंट पार्ट बहुत डीप है. लाइक आपने कृष्ण जी का मेंशन किया था, रामचंद्र जी का, तो वो बहुत डीप है. बट द एंशियंट नेम इज भारत. भारत इज द एंशियंट नेम. हिंदुस्तान बाद में आया है, इंडिया तो ब्रिटिशर्स आए हैं, बहुत बाद में आया है. तो द एंशियंट वन इज भारत, और आई कैन से भरत, बिकॉज भरत के नाम पे ही भारत आया है. तो वो चीज बहुत जरूरी है. एंड आपने देखा होगा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत गर्लक, यस, जो वुमेन एम्पावरिंग और इक्वालिटी के लिए है, तो उसका नाम भारत गर्लक इसलिए रखा है बिकॉज भारत इज दी ओरिजिनलिटी, एंशियंट इज भारत. अभी ये इंडिया, हिंदुस्तान इज वेरी कंट्रोवर्शियल नेम, बिकॉज वहां पे आता है हिंदुओं का स्थान, और हिंदू शब्द है, देखो ये जो हमारी मिसइंटरप्रेशन है, ये उसका भी एक कारण है. हम कहते हैं कि हिंदू डोमिनेट नेशन है इसलिए हिंदुस्तान है, बट ये जो हिंदू शब्द है, ये रूट शब्द को भी हमने जाना नहीं है डीप में. हिंदू वर्ड कहाँ से आया पता है? मोस्ट ऑफ द यूथ को पता नहीं होगा ये चीज. हिंदू मीन्स एच का मतलब है हिमालय, और इंदु मतलब इंडस रिवर. तो जो कंट्री वो इंडस रिवर और हिमालय के बीच में थी, उसे हिंदुस्तान कहते हैं, और नेचुरली वहां के लोग को हिंदुस्तानी लोग कहते हैं. तो ये शब्द का भी वही रूट है. और अगर हम रिलीजियस ये जो कम्युनिटीज के बीच में डिस्प्यूट है उनकी बात करें, तो हमारे एंशिएंट सेजिस ने बहुत पहले से ही, हजारों साल पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती. ये एक डॉक्ट्राइन है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती. दैट मीन्स के all the religions and all the doctrines and philosophies and dogmas and whatever, all the religions are different names of the same thing that the sages call. So these all are the different names. मैंने जैसे अभी कहा कि जैसे जितने माइंड होंगे उतनी इंटरप्रिटेशन होगी. तो यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है. फिलोसॉफी एक ही है, बट इंटरप्रिटेशन अलग थी. अलग अलग लोगों को देखो, ये क्रिश्चियनिटी है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में वेस्टर्न लोगों के ऊपर अप्लाई हो, वैसे ही ये डॉक्ट्रिन वहां पे फैली है ना. उनके लोगों के मन में जो बेस्ट तरीके से बैठे, वैसे ही वहां पे वो स्प्रेड होगी ना. बट लास्ट में उसका मैसेज भी सेम ही है. तो सारी चीजों में यही अप्लाई होता है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज अ थ्रेड दैट यूनिफाइज दैट ऑल द थिंग्स. और ये यूनिफिकेशन है, वही सभी चीज का रूट है. हम साइंस की बात करें तो साइंस में भी अभी वही है ना. हम सारे एलिमेंट्स के उसमें कॉमन क्या है वही फाइंड करते हैं. पहले तो हमने ये फाइंड किया कि यूनिवर्स है वो सेल्स, ये एलिमेंट्स से बनता है. ह्यूमन बॉडी सेल्स से बनती है. उसमें भी हमने यूनिफाई किया कि भाई प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये तीन से ये पूरा यूनिवर्स बना है. चीजें सिर्फ ये तीन ही है, बट वेराइड कॉम्बिनेशंस ये तीन चीजों की. हम ये सोच भी सकते हैं तो कैसे हम थ्रिल आता है अंदर से. हम जब ये टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द यूथ ये थिंक ही नहीं करती, सोचती नहीं है कि ये तीन चीजें सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये तीन है, वो सारे पूरे यूनिवर्स में तीन चीजें ही बनाती है. और वो तीन चीजों में भी कुछ यूनिफिकेशन है. साइंस अभी उसी पर काम कर रही है कि एनर्जी E इक्वल्स mc². और हमारे एंशिएंट सेजेस ने भी यही पहले से ही कह दिया है. तो हमें सही में जानने की जरूरत है कि एंशिएंट फिलोसॉफीज हमारी क्या कहती थी, बिकॉज वो सुपरफिशियल साइंस था. और ये टॉक के ये लास्ट क्वेश्चन टॉक का मैं अभी हमारे डिस्कशन का पूछूंगा कि ये पूरी डिस्कशन में आपको कुछ वैल्यू मिली, आपको लगा कि ये वैल्यूएबल थी, डायरेक्शन इसकी प्रॉपर थी, या फिर ये मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया? आपको क्या लगा? नहीं, टाइम वेस्ट डेफिनेटली नहीं करा, बिकॉज सी व्हाट आई बिलीव इन
कि अगर भी मैं किसी से बात कर रहा हूँ या मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ, डेफिनेटली, नो डाउट, बिकॉज एवरीवन हैज डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट विजन, हर चीज डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आपसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है। एंड नेवरदलेस आज की टॉक तो बहुत स्पेशल थी बिकॉज कुछ चीजें ऐसी थी जो शायद मैं भी भूल गया था, है ना। तो वो चीजें आपने याद दिलाई हैं, अबाउट फिलोसफी, अबाउट एंशियंट वर्ल्ड, राइट, अबाउट ऑल दी एंशियंट टचेस जो कि मैंने अपने क्लास 10 तक पढ़े थे, उसके बाद में शायद कहीं वो खो गई थी वो चीजें, तो वो आपने मुझे आज याद दिलाई है वो चीजों के बारे में। दैट इज वेरी गुड बिकॉज मैं भी सोशल साइंस का बहुत ही फैन हूँ, सोशल साइंस एंड एसएसटी, ईवीएस, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, राइट। अपार्ट फ्रॉम गेटिंग मार्क्स, मेरे को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो। 10 तक मेरे को बहुत होता था, बट वो 10 के बाद बिकॉज आई वेंट इनटू कॉमर्स स्ट्रीम तो वो थोड़ा टच छूट गया मेरा। बट आज जब आपसे बात कर रहा हूँ तो वो सारा टच, वो सारी फ्लैश बैक याद आ गया मुझे, अपना वो क्लास का माहौल, कैसे आई यूज्ड टू लव दोस थिंग्स। तो दैट वाज वेरी इंसाइटफुल एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत अच्छा लगा आपसे आके। और ये सारी चीजें, हमारा टॉक, हमारे डिस्कशन की सारे हमारे कंक्लूजन थे, वो मैं स्वामी विवेकानंद के एक एक्सट्रैक्ट, एक बुक है उनकी, उनमें से मैं ये टॉक का कंक्लूजन लाना चाहूंगा। मैंने ये टिक करके रखी, ये उनकी बुक है रिबिल्ड इंडिया करके, सिंपल सी बुकलेट है। और उनकी बुक्स मैं पहले से ही पढ़ता आ रहा हूँ, और सच में ये जो स्पिरिट है ना, ये सोल है ना, इंडिविजुअलिटी, वो हमें एंशियंट रूट्स जान के ही मिलती है। और बस ये टॉक का कंक्लूजन में भी ये उनके विचारों से करना चाहूंगा। He says in his book, all the wealth of the world cannot help one little Indian village if the people are not taught to help themselves. We are talking about education. Our work should be mainly educational, both moral and intellectual. Education is not the amount of information that is put into your brain and run riot there, undigested, all your life. We must have life building, man making, character making assimilation of ideas. If you have assimilated 5 ideas and made them your life and character, you have more education than any other man who has got by heart a whole library. The ideal, therefore, is that we must have the whole education of our country, spiritual or secular, in our own hands, and it must be on national lines, through national methods as far as practical. Education, education, education alone. Traveling through many cities of Europe and observing in them the comforts and education of even the poor people, there was brought to my mind the state of our own poor people, and I used to shed tears. What made the difference? Education was the answer I got. The only service to be done for our lower classes is to give them education, to develop their lost individuality. They are to be given ideas. Their eyes are to be opened to what is going on in the world around them. And then they will make out their own salvation. Every nation, every man, and every woman must work out their own salvation. Give them ideas. That is the only help they require. And then the rest must follow as the effect. Ours is to put the chemicals together. The crystallization comes in the law of nature. Our duty is to put ideas into their heads, and they will do the rest. This is what to be done in India. Thank you very much. नहीं, इट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड मैंने भी ये चीज पढ़ी है, और मैंने ये चीज पढ़ी थी अपने 11th क्लास में। 11th क्लास में हम लोगों को एक चैप्टर था स्वामी विवेकानंद जी का, तो वहां पे मेरे को ये मतलब ये बात हम लोग को उस चैप्टर में लिखी थी प्रॉपर फुल एक्सप्लेन्ड फॉर्म में, तो मैंने ये चीज वहां पढ़ी थी, ये लाइन। Truly inspirational. Yeah. Thank you. Okay, thank you and namaste. Thank you for Namaste. having me. Tanu, tanu, tanu.